بہاولپور میں چولستان جیپ ریلی کی رونقیں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ ایشیا گھی ملز کے مالک زید محمود کی روحی سے گفتگو، کہا ایشیا ٹیم بھی چولستان جیپ ریلی جیتنے کے لیے پرعزم ہے، فنش لائن تک کامیابی سے پہنچیں گے، جیت ہماری ہی ہوگی۔ مزید جانتے ہیں محمود ظہیر سے۔ جیپ ریلی شروع تو بہاولپور کا نام چولستان جیپ ریلی کے حوالے سے آتا ہے، لیکن دوسرا نام جو آتا ہے وہ ایشیا ٹیم اور زید محمود کے نام سے آتا ہے، جنہوں نے ابھی حال ہی میں تھل جیپ ریلی میں پہلا انعام جیتا تھا اور انشاءاللہ تعالی اس بار بھی چولستان جیپ ریلی میں پریپیڈ کیٹیگری میں پہلا انعام جیتیں گے۔ زین بھائی، آپ کے ساتھ ہماری بیسٹ وشز ہیں، کیسا دیکھ رہے ہیں ریس کے حوالے سے اور تیاری کے حوالے سے؟ تیاری جی بھرپور ہے، اس سال انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارے گھر کی ریس ہے تو اس کے اندر جتنا بہتر پرفارم کر سکیں، اور گاڑی اور بندے کا جو ٹیسٹ ہے اس کو اوپر جو ہے وہ ہم اس میں کامیاب ہو سکیں، یہی ہماری کوشش ہوگی۔ تو کتنی دیر میں آج پہلا راؤنڈ جو کوالیفائنگ راؤنڈ ہے یہ بھی جیتیں گے انشاءاللہ تعالی، اور باقی بھی اصل میں نے آپ کے بہت سارے انٹرویو کیے، اس میں آپ کہتے ہیں کہ ڈیسٹینیشن منزل ہے، اس بار بھی وہی منزل ہے یا کچھ اور پلان ہے؟ بالکل جی، فنش لائن کراس کریں گے تو جیت یا ہار اس کے بعد ہوگی۔ ابھی تک نادر مکسی صاحب کا 1 منٹ 6 سیکنڈز کا ٹائم ہے، میرا 4 سے 5 گاڑیوں کے بعد ہے، تو دیکھیں گے پھر کس طرح سے پوزیشن بنتی ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس بار کن سے ٹف مقابلے کی امید ہے چولستان جیپ ریلی کے فائنل ڈے میں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ سارے ہی اے پریپیئرڈ کے ریسرز بہت تیز ہیں، بہت اچھے سکلڈ ہیں، اور سب کی گاڑیاں جو ہے وہ بڑی سملر ہیں، تو ایک ٹف مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ ایک ٹف مقابلہ ہونے کو جا رہا ہے جی، بتا رہے تھے زین محمود مجید جو کہ اس وقت ایک ریس میں حصہ لے رہے ہیں، پریپیڈ کیٹیگری میں ان کا حصہ ہے، اور اس کے علاوہ تھل جیپ ریلی کے ونر ہیں۔ اس بار دے رہے کہ چولستان جیپ ریلی بھی ہم میدان ماریں گے، تو دیکھتے ہیں، لیٹس سی۔ لیکن چولستان جیپ ریلی کا میدان محمود ظہیر، شکریہ آپ کا، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں، بہاولپور چولستان جیپ ریلی میں کوالیفائنگ راؤنڈ جاری ہے۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں معظم بلوچ کی گاڑی الٹ گئی، معظم بلوچ حادثے میں زخمی، موقع پر طبی امداد دی گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں بہاولپور چولستان جیپ ریلی میں کوالیفائنگ راؤنڈ اس وقت جاری ہے۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں معظم بلوچ کی گاڑی الٹ گئی ہے، معظم بلوچ حادثے میں زخمی ہو گئے ہیں، طبی امداد دی گئی ہے ان کو۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت بہاولپور چولستان جیپ ریلی میں کوالیفائنگ راؤنڈ جاری ہے۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں معظم بلوچ کی گاڑی الٹ گئی ہے، معظم بلوچ حادثے میں زخمی، موقع پر طبی امداد فراہم کر دی گئی ہے۔ صادق آباد چولستان جیپ ریلی کے سلسلے میں جناح سپورٹس کمپلیکس میں تقریب ہوئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کلیم یوسف نے تقریب کا آغاز پرچم کشائی سے کیا ہے۔ رنگا رنگ تقریب میں ڈھول کی تھاپ پر پنجاب کا روایتی رقص بھی پیش کیا گیا ہے۔ باکسنگ اور جمناسٹک کے کھلاڑیوں نے صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ ریسکیو 1122 نے ایمرجنسی ڈیل کرنے کا مظاہرہ کیا۔ مزید جانتے ہیں جاوید اقبال سے۔ جی جاوید، بتائیے گا۔ 17ویں انٹرنیشنل جیپ ریلی کے حوالے سے جو ہے وہ صادق آباد میں تحصیل انتظامیہ کی جانب سے جو ہے رنگا رنگ تقریبات جو ہے وہ کی گئی۔ اس وقت جو اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد کلیم یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بتائیے گا آج کے ایونٹ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، اور شہریوں کو جو ہے جیپ ریلی کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ روہی کا اور چولستان کا سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اور اب تو یہ نیشنل سے انٹرنیشنل ایونٹ بن چکا ہے چولستان جیپ ریلی۔ تو اس سال 17ویں چولستان جیپ ریلی بہاولپور ڈویژن میں چولستان کے اندر ہونے جا رہی ہے، اور کمشنر صاحب کی خاص ڈائریکشن کے اوپر پورے ڈویژن کی تمام تحصیلوں کے اندر ایونٹ آرگنائز کیے جا رہے ہیں سپورٹس کے یا انٹرٹینمنٹ کے لیے، جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو انفارم بھی کیا جائے اور ان کو انوائٹ بھی کیا جائے کہ وہ اس سال جو چولستان جیپ ریلی ہے اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اس ایونٹ کو انجوائے کریں۔ جی بالکل، 17ویں ہونے والی چولستان ریلی کے حوالے سے جو ہے تمام تحصیل بھر میں جو ہے ایسے ایونٹ جو ہے وہ جو ہے۔ جاوید، شکریہ آپ کا، آپ آگاہ کر رہے تھے۔ اور اب آپ کو بتائیں، احمد پور شرقیہ میں 17ویں چولستان جیپ ریلی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ احمد پور شرقیہ میں شہریوں کی کثیر تعداد نے صحرائے چولستان کا رخ کر لیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران۔ ہاں جی بالکل، 17ویں چولستان جیپ ریلی کا انعقاد ہو چکا ہے، اور پریپیئر اور سٹاک مارکیٹنگ کیٹیگری کی گاڑیاں جو ہے وہ ریسنگ میں شامل ہیں۔ اس وقت جو ہے ڈرائیورز کا جو ہے طبی معائنہ بھی کیا جا رہا ہے۔ بتایا گیا 135 گاڑیوں کا جو ہے وہ معائنہ جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس وقت جو ہے لوگ بھی شائقین بھی جا رہے ہیں جیپ ریلی کا انجوائے لینے، تو مزید جو ہے ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے۔ جی کہاں جا رہے ہیں؟ ہم جی قلعہ ڈرائیور ریلی پہ جا رہے ہیں۔ کیا حال سنائیں، کیسا مزہ آتا ہے؟ آپ ماشاءاللہ بڑی گاڑی ہے، یہ بھی ریسنگ میں ہوگی شامل؟ یہ پارٹیسپیٹ تو نہیں کر رہے، لیکن بہت اچھی جگہ ہے جی،
बहुत अच्छा इवेंट है, साल के बाद ही आता है, तो इस बहाने सारे दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, गपशप हो जाती है, सारे दोस्त मिलजुल के बैठते हैं। हुकूमत की जानिब से क्या अरेंजमेंट क्या की गई? हुकूमत का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, ट्रैफिक पुलिस होती है वहाँ पे, पंजाब पुलिस है और टीडीसीपी वाले हैं सारे। हाँ जी, जीप रैली का खूब जो है वो मजा लिया जा रहा है। इस वक्त जो है लोगों की खासी तादाद जो है वो जीप रैली में। सही इमरान अकबर, आपका शुक्रिया। और अब आपको बताएं, डेरा गाजी खान सरवर वाली सब्जी मंडी में 22 दुकानों की नीलामी मंडी सदर और दीगर ओहदेदारान की निगरानी में की गई। नीलामी में ताजरों और आड़तियों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, आगाह कीजिएगा। गाजी खान में सरवर वाली सब्जी मंडी कामयाबी की तरफ गामजन है। डीजी खान में सरवर वाली सब्जी मंडी में दुकानों की नीलामी आम की गई है आज, और इस हवाले से जो मंडी इंतजामिया है, मंडी की जो मैनेजमेंट है, जो सदर हैं, उन्होंने इस तमाम नीलामी की निगरानी की है और तकरीबन 20 से ज़ायद दुकानें थी जिनकी नीलामी आज की गई है। बात करते हैं, मलिक हुसैन बख्श साहब मौजूद है। सर, कितनी दुकानों की आज नीलामी की गई है, प्रोसीजर चला है, किस तरह से चला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भैया 22 दुकानें बची हुई थी, वो बेची है हमने अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब्जी मंडी की सारा डेवलपमेंट का काम खुद कर रहे हैं और माशाल्लाह हमारी पैमरा से मंजूरी वो आ गई है। इसके अलावा सारा हमें बयान नहीं दे रहा, अल्लाह खैर करेगा, वो भी ले लेंगे। पहले भी आप आए थे, आपने देखा था काम क्या था, आज क्या है, ये सारी तुम्हारे सामने है हर चीज़। अल्लाह ताला मेहरबानी करे। चार दीवारी मुकम्मल हो गई है, सारा काम मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। छठे महीने ये मंडी मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह खैर। जी बिल्कुल, छठे महीने ये मंडी मुकम्मल हो जाएगी और ख़ुसूसी तौर के ऊपर तवज्जो दी जा रही है मंडी के तरक्याती कामों के हवाले से। जो मंडी की मैनेजमेंट है, जो सदर हैं, उनकी जो पूरी कैबिनेट है वो यहाँ पर आज मौजूद है और नीलामी का अमल यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। जिन लोगों ने भी नीलामी में हिस्सा लिया है, जिन्होंने ज़्यादा बोली दी है, उन्होंने आज बाकायदा तौर के ऊपर दुकानें विन की और बाकायदा तौर के ऊपर उनको मंडी इंतजामिया की जानब से पैसे मुकम्मल देने के बाद कब्जा जो है वो। आपका शुक्रिया। मियां वाली सेहत के मैदान से अच्छी खबर, डीएचक्यू अस्पताल में 200 बेड्स की नई बिल्डिंग की तामीर के लिए टेंडर्स लिख दिए गए। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने इजाजत दे दी। 2 अरब 25 करोड़ रुपए की लागत से 2 साल में प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। मजीद तफसीलात बता रहे हैं महमूद जहीर। के शहरियों के लिए सेहत के शोबा में एक बड़ी खुशखबरी, मियां वाली डीएचक्यू हॉस्पिटल जो इन दिनों 313 बेड पर मुश्तमिल है, 200 बेड की नई इमारत बनाई जा रही है जिसके टेंडर हो चुके हैं और अब मियां वाली डीएचक्यू हॉस्पिटल जो है 513 बेड पर मुश्तमिल हो जाएगा। एमएसडीएचक्यू डॉक्टर अमीर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, आपसे इस सवाल से बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, टेंडर हो चुके हैं, बाकायदा काम कब शुरू हो रहा है और ये प्रोजेक्ट कितने अरसे में मुकम्मल होगा और कितना खर्च आएगा इस पे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, 200 बेड की एक्सटेंशन जो डीएचक्यू हॉस्पिटल की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने अप्रूव की थी, उसका टेंडर प्रोसेस हुआ, टेंडर अवार्ड हो चुका है। वर्क आर्डर विद इन 3 to 4 days बशीर एंड को नाम की कंपनी है, उसको मिल जाएगा। उसके बाद फौरी तौर पे इस पे काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। इस वक्त जो कि 313 बेड पर हॉस्पिटल मौजूद है, ये 513 की स्ट्रेंथ पे चला जाएगा। इसमें न्यूरो सर्जरी की एडिशन है, इसमें डायलिसिस के बेड की एक्सटेंशन है, सर्जरी, मेडिसन, कैथ लैब का इजाफा है, एमआरआई का इजाफा है। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी में एक मॉडल हॉस्पिटल बनने की तरफ जा रहा है। इस तरह इसके साथ 481 HR की भी अप्रूवल हुई है, जिसमें 1 to 20 ग्रेड तक के लोगों की डिप्लॉयमेंट होगी। इसमें कंसल्टेंट्स की भी, इसमें जो भी केडर के लोग हैं, स्टाफ नर्सेज, टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजिस्ट, कैथ लैब के लोग, स्किलफुल लोग जो होंगे वो इसमें एडिशन होगी उनकी, जिसकी वजह से ये जो 200 बेड की एक्सटेंशन है, ये कार्डियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से और डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से और डायलिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहमियत की हामिल होगी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट कितने अरसे में मुकम्मल होगा और इस पर लागत कितनी आएगी? सर, ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसमें 2 अरब 25 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। 2 साल के अंदर ये कंप्लीट होगा और विद इन 2 ईयर इसकी इनागुरेशन कर दी जाएगी और इसमें इक्विपमेंट और जो भी HR होगा उसको डिप्लॉय कर दिया जाएगा।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि 2 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है और इसकी तामीराती। अख्तर महमूद, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावल नगर में यूरिया खाद का बहरान, खाद न मिलने पर काश्तकारों का एहतजाज। किसानों की यूरिया खाद न मिलने पर नारेबाजी। गंदम की फसल को पानी से पहले यूरिया खाद की जरूरत है। किसान यूरिया खाद के लिए मुख्तलिफ जगहों पर धक्के खा रहे हैं। लिया में शहर के मसरूफ चौक पर ट्रैफिक एहलकार तैनात न होने पर मसाइल पैदा हो गए। खत्म नबूवत चौक के चारों तरफ स्कूल कॉलेज होने पर हजारों तालिबे इल्म आते हैं। स्कूल औकात में बेहंगम ट्रैफिक से मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं जाहिद सरफराज। मैं मौजूद हूँ खत्म नबूवत चौक पर। खत्म नबूवत चौक अगर बात की तो जहाँ पर जो है एक तरफ कॉलेज रोड है और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर डीपीएस वाले स्कूल के 2 विंग्स हैं और इसके साथ यहाँ पर मुख्तलिफ वोकेशनल स्कूल है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। छुट्टी के टाइम और सुबह यहाँ पर ट्रैफिक का शदीद दबाव होता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बच्चे जो है उनको छुट्टी के बाद वालिदैन लेने के लिए रिक्शे आते हैं, साथ साथ कैरी डब्बे आते हैं, दीगर यहाँ पर तलबा तालबात के अमल सिलसिला होता है। उसके बावजूद यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के ना तो एहलकार तैनात होते ना ही यहाँ पर ट्रैफिक इशारे लगाए गए हैं, जिसकी वजह से रोज हादसे होने के साथ साथ यहाँ पर ट्रैफिक भी ब्लॉक रहती है। कुछ शहरी मौजूद हैं, वालिदैन उनसे बात करते हैं। भैया जैसे इसको क्या मुश्किलात ट्रैफिक ब्लॉक रहेंगे? सर तो ट्रैफिक ब्लॉक रहेंगे एक गवर्नमेंट है सारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को चाहिए या तो इतना एक कोई भाई ट्रैफिक के जो एहलकार हैं उन्होंने खड़ा है या इतना सिग्नल्स का इस्तेमाल किया वने ताकि जो ना आम शहरियों को स्कूल के बालों को जो मुश्किल न थी। मुतालबा कह रहे कि सिग्नल लगाए जाए। भाई तुसा क्या दे? अस्सलाम वालेकुम। सारे बच्चे इतना पढ़ते सही नहीं ते ट्रैफिक का बड़ा मसला आते ना इतना कोई ट्रैफिक वाला आते मौजूद ये बारे को सोचा भी ट्रैफिक वाला कोई ना कोई तैनात किया मैंने सही। तमाम जो शहरी हैं जो वालिदैन मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार तैनात करने के साथ साथ यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा रश होता है। यहाँ पर रिक्शे जा रहे हैं, कैमरे में आपको दिखा भी रहा होगा इस वक्त कि यहाँ पर रिक्शों की वजह से बहुत सारे मुश्किलात और यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहती है। मुश्किलात सरफराज, आपका शुक्रिया। मुल्तान डिवीजन भर में मार्केट में अशिया खुरनोश की कीमतों को बरकरार रखने के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। मजीद जानते हैं मोहसिनुल मुल्क से। जी लोगों को कम कीमत और जो हुकूमती रेट हैं उस पर चीज़ें देने के लिए इस वक्त डिवीजनल इंतज़ामिया हर ज़िले के अंदर अपने इक़दाम करते हुए दिखाई दे रही हैं और उसमें डिवीजन के सरबराह कमिश्नर मुल्तान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद खुद पेश हैं। इस वक्त मुल्तान मंडी के अंदर आकर रेगुलर जो बेसिस पे कीमतें चेक करती हैं, आज भी की हैं। डॉक्टर साहब क्या क्या चीज़ें रेक्टिफाइड हो रही हैं और ख़ास तौर पर मुकामी चीज़ें तो कीमतें कंट्रोल हैं लेकिन एकदम से रैपिडली ऊपर चली जाती हैं? इसको 3 चीज़ों की अगर कीमतें हम चेक करते हैं, जिसमें अगर पोटैटो की है तो जो आलू है वो बिल्कुल नॉर्मल रेट पे लोअर साइड पे जा रहा है, तकरीबन 20 से 22 रुपए पर किलो जो अवेलेबल है। इसी तरह जो है अनियन जो है या प्याज जो है उसकी रेट भी लोअर साइड पे हैं। टमाटर जो है वो पिछले दिनों उसकी जो है वो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ऊपर गई थी, तकरीबन कोई आप कह लें 140-146 रुपए पर किलो के हवाले से भी गई थी। उसकी रीज़न थी कि पिछले दिनों जो सिंध है, सिंध के अंदर ये कोरे की वजह से और बारिशों की वजह से फसल जो है वो काफ़ी मुतासर हुई थी जो टमाटर की है। अभी जो है अब ईरान से भी टमाटर आना शुरू हो गया जो आज मैंने चेक किया है। इसके अलावा जो बलूचिस्तान से भी आना शुरू हो गया, उसकी वजह से अब जो है वो टमाटर की प्राइस भी नीचे आ रही है। अभी जो कल का रेट था वो 104 रुपये था, आज मेरा ख्याल है कि 100 के राउंड अबाउट होगा। तो इसलिए वो जब सप्लाई ज़्यादा आई है तो ऑटोमेटिकली उसकी रेट्स भी नीचे आ गए। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं तो हमने ये होलसेल पॉइंट एक बनाया हुआ है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के हवाले से। यहाँ जो चीज़ें अवेलेबल हैं ये इसी रेट पे दी जाती हैं जिस रेट के ऊपर ये ऑक्शन होती है, ताकि ये लोग यहाँ पे आएँ और अपनी चीज़ें जो है ना यहाँ से परचेज कर सकें। डॉक्टर इरशाद अहमद खुद मंडी का रेगुलर जैसे विजिट कर रहे हैं वो किया और आकर तमाम कीमतों को अस खुद देखा, बोली में भी उन्होंने शिरकत की है ताकि कम कीमत जो चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँच सकें। सही मोहसिन, आपका शुक्रिया। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्ठा की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ है। चारों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका अफसरान शरीक हुए। रेवेन्यू मामलात, कोरोना वैक्सीनेशन, प्राइस कंट्रोल, एहसास राशन रायत प्रोग्राम, एहसास दस्तरखान लंगर खाने, एहसास दीवार और दीगर अमूर पर हिदायत दी जाएगी। मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। आपको बता रहे हैं कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्ठा की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक का इजलास हुआ। चारों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका अफसरान शरीक हुए।
मुल्तान के तालीमी अदारे अब अपनाए जाएंगे। मुल्तान में कमिश्नर डॉक्टर अरशाद अहमद का सरकारी तालीमी अदारों के बच्चों की फलाह बहबूद के लिए मुनफरिद इक़दाम। इंतजामिया का निजी सेक्टर के ताउन से स्कूल्स में बुनियादी सहूलियात की फराहमी का आगाज। सरकारी तालीमी अदारों को बेहतर करने और वहां सेरे तालीम बच्चों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए नया प्रोग्राम शुरू किया गया। डिप्टी कमिश्नर की बस्ती खोखरा में स्कूल को अपडेट करने की तकरीब में शिरकत। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं तैयब सैफ से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। मुल्तान में वो तमाम स्कूल जहां पर बच्चों के पास बुनियादी सहूलियात नहीं है, उनको सहूलियत देने का जो फैसला है वो किया गया है और मुकामी जो NGOs हैं उनके साथ मिलकर अब स्कूलों को अडॉप्ट करने का सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। तो आज हम यहाँ मौजूद हैं बस्ती खोखरा में, जहाँ पर बच्चों के पास यूनिफॉर्म नहीं थे, जूते नहीं थे, जर्सियाँ नहीं थी, आज उनको फ्राहम किया गया। DC साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आप ये अडॉप्शन के हवाले से, ये जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक हम नया काम करने जा रहे हैं मुल्तान के अंदर के मुखय्यर हजरात को, ऐसी NGOs को जो दर्द दिल रखती हैं कि अडॉप्ट स्कूल के नाम से हम काम करेंगे। आज उस सिलसिले की पहली कड़ी थी। जो लायंस क्लब है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसमें हमारा पार्टनर बनने का फ़ैसला किया है। तो ये बस्ती खोखरा का स्कूल उस सिलसिले की पहली कड़ी है। तो अडॉप्ट स्कूल में होगा ये कि कॉलेज की जितनी भी बुनियादी ज़रूरियात हैं, जिस तरह आज बच्चों को सर्दियों के कपड़े देने थे, कल को कोई और छोटी ज़रूरत पेश आ जाती है तो ये लायंस के जो हमारे दोस्त हैं उस ज़रूरत को पूरा करेंगे। इससे सरकार की मदद के बगैर सोसाइटी को इन्वॉल्व करके स्कूल के अंदर जितनी भी बेहतरी की जा सकती है, कोई लॉन को इम्प्रूव करना है, कोई इनको बोर्ड्स चाहिए उसकी पढ़ाई के लिए, कुछ चेयर्स, कुछ फर्नीचर टूटा उसको रिपेयर करना है, तो ये सारी चीज़ें हम अडॉप्ट स्कूल के तहत करेंगे और इस सिलसिले को बढ़ाएंगे। आज बारिश का पहला कतरा लाइन्स वाले साबित हुए हैं, तो उम्मीद है ये काफ़िला बढ़ता जाएगा। जो उम्मीद है कि काफ़िला बढ़ता चला जाएगा और इस वक्त सूरत हाल ये है कि बच्चों को यहाँ पे यूनिफॉर्म तकसीम किए गए हैं, जूते तकसीम किए गए हैं ताकि उनको तालीम के हसूल में कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। जी तैयब सैफ, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं, बिजली है ना पानी, बैतुल खला भी मौजूद नहीं। मुल्तान का वाहिद क्राफ्ट बाजार बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अलिशा आसिफ, ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान का वाहिद क्राफ्ट बाजार सहूलियात से महरूम। बाजार में बिजली, पानी और बैतुल खला मौजूद नहीं। हुनरमंदों को सहूलियात ना मिलने की वजह से कदीम फनून मखदूम होने का खदशा है। हमें कहा गया था कि आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ आर्टिजन नेटवर्क और एक छोटी छोटी वर्कशॉप हर दस्तकार के साथ होगी, यानी एक दस्तकार की चीज़ें तैयार भी पड़ी हों और यहाँ बैठ के बना भी रहा हो। तो वो हम गवर्नमेंट से दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं, बारहा कर चुके हैं, ताकि ये हमें बुनियादी सहूलतें दें, नहीं तो ये फ़नून ऐसा ऐसा ख़त्म हो रहे हैं। जिला इंतजामिया ने क्राफ्ट बाजार में बुनियादी सहूलियात देने का ऐलान जरूर किया, लेकिन अमल नहीं। दस्तकारों का कहना था कि सहूलियात ना होने की वजह से नौजवानों को कदीम फनून सिखाना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ पे मसाइल तो काफ़ी सारे हैं, ना लाइट है, ना वाशरूम है, ना पानी है, कोई सहूलत भी नहीं है। हाँ, काफ़ी अरसे से ऐसे ही है, ना बिजली है ना पानी है और गाहक भी बहुत मुश्किल है। दस्तकारों का मजीद कहना था कि वो मुल्तानी सकाफत को जिंदा रखे हुए हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर भी मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, मगर किसी को क्राफ्ट बाजार का ख्याल नहीं। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से, जहां पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम तहसील हॉकी टूर्नामेंट फाइनल। तहसील सादकाबाद और तहसील रहीम यार खान असातिज़ा की हॉकी टीमें मथे मुकामिल। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताइए। रहीम यार खान में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल में जो तहसील सतह पर हॉकी का टूर्नामेंट था, आज उसका फाइनल हुआ है और इस हवाले से जो तकरीब इनामात है, इसके मेहमान खसूसी हैं डीओ सेकेंडरी कस्तूरा जिशाद, उनसे जानते हैं। सर, बहुत एक अच्छा मैच था और इसको आपने इंजॉय किया, तमाम लोगों ने इंजॉय किया कि असातिज़ा भी आज उनके दरमियान खेल का एक मैदान सजा। इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी थैंक यू रोहित टीम। बात इस तरह ये है कि हम साउथ पंजाब सेक्रेटरी जो है हमारे एहतशाम अनवर साहब, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मौका फराहम किया है। इस मौके पर जबकि एक कोरोना का दौरा था, उस मौके पर हमें ये ग्राउंड आबाद करने का एक मौका फराहम किया। पहले आपको पता है कि बच्चों के मुकाबले हुए, उसके बाद ये जो हमारे पीईटी टीचर्स हैं, जो बच्चों के कोच हैं, बच्चों को खिलाते हैं, इनके मैचेस हुए और आज 5वां दिन है मैचेस को होते हुए। पहले फीमेल के हुए, अब मेल के जारी थे। तो इसमें आज जो हॉकी टीमें थी, दोनों रहीम यार खां की और सादकाबाद का मुकाबला था, इंटर तहसील था।
इंटर समझ लें कि डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट होने जा रहा है। तो इसमें सादिकाबाद की टीम जो है वो फर्स्ट पोजीशन लेके यहाँ पे कामयाब ठहरी है, उसको मुबारकबाद देता हूँ। और इनको देख करके मुझे अंदाज़ा होता है कि अगर ये टीचर्स जो है हमारे पीटी टीचर्स हैं, ये सही माने में रोज़ाना प्रैक्टिस करते रहें तो मैं समझता हूं कि ये बच्चों से ज़्यादा एक्टिव नज़र आए हैं मुझे, तो ये एक्टिव ही रहेंगे। और इन्होंने जो जिस तरह से खेल का यहाँ मुजाहरा किया तो मुझे बहुत खुशी हुई इनको देख के, भागते दौड़ते। तो यही हमारा एक फ़िटनेस का तरीका है कि हमें जो है ना अपनी जो मश्क है वो डेली करनी चाहिए। और इसके लिए हम जो है ना पूरे जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पर, टीचर बरादरी हमारी है या हम ऑफिसर्स हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साउथ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया और ग्राउंडों का बात किया। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, बहुत ही एक अच्छी एक्टिविटी, और इस वक्त जो जीतने वाली टीम है उनकी खुशी भी दीदनी है, और इसके साथ साथ मैसेज भी दिया जा रहा है कि असातिज़ा को भी खेल के मौके फराहम किए गए, उनके सेहतमंद माशरे का क़याम भी यकीनी तौर पर अमल में लाया जा रहा है। जी सही, आमिर डोगर आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तहसील सादिकाबाद टीम ने 1 गोल से फाइनल अपने नाम कर लिया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर तमाम तहसील हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल जारी है। तहसील सादिकाबाद और तहसील रहीम यार खान असातिज़ा की हॉकी टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। तहसील सादिकाबाद टीम ने 1 गोल से फाइनल अपने नाम कर लिया है। रहीम यार खान में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ये मैच खेला जा रहा है। तहसील सादिकाबाद टीम ने 1 गोल से फाइनल मैच जीत लिया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम ये मैच जारी है। तहसील सादिकाबाद और तहसील रहीम यार खान असातिज़ा की हॉकी टीमें इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं। तहसील सादिकाबाद टीम ने 1 गोल से फाइनल जीत लिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।